What is benching? एक रिलेशनशिप में जो दोनों लोग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं है, मतलब कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी अभी ओपन हाँ मैं बेंच कर रहा हूँ तुम्हें. There are couples who have spent 30 years, 35 years and now are separating. बहुत सारे पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप हो रहा है हमारे देश में अभी पिक्चर में, क्योंकि शराब पी के आप धुरंधर बनोगे तो फिर आप किस टाइप का इंसान है. I mean it is shocking. Yeah. How क्या हो रहा है हमारे देश में और to young people. Yeah. You don't have to be in depression and die of a broken heart. I used to love so much और कितने सारे लोगों से मैंने लव किया. मैक्स मिन और मियाज़ाकी एक प्यार की कहानी सिर्फ नहीं है, रिश्ते के टूटने, बिखरने, तन्हाई, अपने आप को हील करने की कहानी है. और इसे लेकर आ रहे हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही यंग स्टार्स. मेरे साथ हैं बहुत ही अपकमिंग, बहुत ही प्यारे, बहुत ही कमाल के नासर सर, इतनी खूबसूरत नफीसा मैम, और साथ में सिद्धार्थ और वेदांती और पैडी भाई. इतना हार्टफेल्ट ट्रेलर लेकर आए हो इस मार धाड़ धूम धड़ाके वाली दुनिया में. जब ये फिल्म बना रहे थे बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी. क्या सोच के आप ये लेकर आए, और बाकी स्टार कार्ड से भी इसके ऊपर मैं बात करूंगा फिर. I was very lucky कि बहुत सारे लोग इसमें घुसे नहीं, मतलब ऐसे बनाओ वैसे बनाओ. I had a producer who completely believed in us. She believed in the story and she said you make the film you want to. So ऐसे opportunities बहुत कम मिलते हैं. I know how it is with I have friends who are filmmakers, you know. So in that sense, the story that was written is the film that is out. लेकिन पहले ये होता है ना कि इंडस्ट्री में एक कोई चीज चल रही होती है तो वो लीक पे सब चलने लगते हैं, भेड़ चाल चलती है. Correct. तो आप कैसे उससे अलग सोच पाए और इस तरह की फिल्म लेकर आए जिसमें सिर्फ शोर नहीं है, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है. एक है कि मैंने ये फिल्म्स बनाने से पहले I made a film in 2017. It's called A Billion Color Story. उससे पहले I was in advertising. तो वहाँ पे तो 20 साल के ऊपर मैंने बिताए and I made a lot of, you know, I've worked with stars in that, all of that. So after that, everything that I wanted to make, I wanted it to have some meaning, you know. तो ये नहीं था कि the ambition was not to make a blockbuster or a hit, क्योंकि वो sensibilities है नहीं. बना सकते हैं वैसे, but there needs to be meaning, you know. Without meaning, you spend so much of time making a film. 2 साल तो लग ही जाते हैं. And at the end of 2 years, if you have something that is superficial or lacking in meaning, then you've wasted 2 years of your life. तो ये है मेरा मानना. And I'm also older than the average director, you know. So yeah, so the need to make something of meaning, the need to make something of heart is very high. Yeah. नासिर सर, नफीसा मैम, वेदांती एंड सिद्धार्थ, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब ये कहानी के बारे में नरेट कर रहे थे आप लोग को, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसने आपको इस कहानी को करने के लिए, एक्ट करने के लिए मजबूर किया? When you first told the story, I saw the people whom I met in my life. They are coming and walking, talking the same dialogues in the life. So it was not like a story. It was about the people whom I know already. Very rarely you come across a script like this, stories like this. It has been always fantasy like that. But here, each and every character was known to me. So, and it was very true. It's nothing to create a drama or, you know, make it dramatic. No. As it goes, it just, you know, it was like a stream, it was flowing. So that attracted me that I had to be part of this. Because I'm not going to act in this. I can see myself, you know, in Adil, and I could see my son. Everything was connected already. So when he brought the script, I said immediately yes. My first reaction was, I don't want to act. I was fighting my cancer. But Paddy, my genius director, you know, when the director gets after you, na, so then you get under pressure.
कि मे बी पता नहीं क्यों उन इफ ही बिलीव्स इन मी देन कुछ तो होगा। और फिर मैंने पैडी की आंख में देख के हाँ टेल मी द पूरा कहानी सुनाओ, और सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये रियल लाइफ में एक रियलिटी बन चुका है दुनिया में, जिसमें यंग पीपल आर नॉट सेंसिटिव टू द इशू। तो मैंने इसलिए पिक्चर में काम किया बिकॉज यंग इंडिया, majority of India is under 28. Young India needs to understand उनका जो moral responsibility है, उनके जो sensibilities है, कैसे जुड़ना चाहिए with the elders. See, old people do everything for their children. और आज के ज़माने में क्या हो रहा है, सब बच्चे गायब, इधर उधर इंटरनेशनल सब घूमते हैं, और पेरेंट्स के लिए वक्त भी नहीं होते हैं। तो दिस इज अ मूवी अबाउट हार्ट, अबाउट सोल, अबाउट केयरिंग, और फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने किया, क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसे भी हो सकता है। सिद्धार्थ, काफ़ी सारे रीजंस एक्चुअली। एक तो जब मैंने पूरी कहानी सुनी, स्क्रिप्ट, जो मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही थी बाहर, मुझे ऐसे लगा कि मैं एक ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुका हूँ इस रीडिंग से ही। मैंने एक्चुअली पैडी को बोला भी था कि ये फिल्म बनाने की ज़रूरत है क्या, आप खुद को शूट कर लीजिए, यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट और वो रिलीज कर दीजिए। ही रीड्स इट सो ब्यूटिफुली। बट मेरा ये मानना है कि ये जो काम मैं करता हूँ और हम सब करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है फॉर द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम सब एक कहानी है इन इटसेल्फ, और हम सब अलग अलग फेजेस में जीते हैं और अलग अलग जॉनर्स में जीते हैं। कभी कभी हम एक ट्रेजेडी में है, कभी कभी वी आर ट्रायम्फेंट, कभी कभी कुछ नहीं होता, कभी कभी लार्जर देन लाइफ चीज़ें होती है ज़िंदगी में। सो इसीलिए मैंने हाँ कहा। एक्चुअली मैंने हाँ नहीं कहा, फिल्म ने मुझे हाँ कहा। एक्चुअली दैट्स मोर एप्ट टू से। और मुझे लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो लोग सालों तक याद करेंगे, और जब उनको लो फील होगा, तो ऐसी कुछ फिल्में हैं ना कि लो फील हो रहा है, चलो यार ये देख लेते हैं आज। सो दिस विल बी वन ऑफ दोज विच विल बी अ पार्ट ऑफ समबडीज पर्सनल लाइब्रेरी। और मैं एक एक्टर हूँ और काफ़ी ग्रीडी भी हूँ, सो द थॉट ऑफ बीइंग इन समबडीज पर्सनल लाइब्रेरी ऑल्सो एक्साइट्स मी, दैट आई कैन मैं कुछ दे सकता हूँ लोगों को in the form of entertainment, in the form of healing, और इन सब लोगों के साथ काम करने का मौका और क्या चाहिए। कमाल रहा होगा। बहुत बहुत ज़्यादा। वेदांत्री, मैंने तो जब मैंने ऑडिशन ही दिया था, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये करना है, क्योंकि जो कैरल के बारे में जो सिनॉप्सिस था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने डिसाइड कर दिया था कि मुझे करना है ये। मुझे मिलेगा तो ग्रेट, लेकिन और जब हम एक्टर्स के तरह जब हम ऑडिशन देते तो हमको लगता है कि ठीक है पहले ऑडिशन देंगे, फिर शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर हम डिसाइड बाद में करते हैं, एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। मेरा ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सिनॉप्सिस में ही मतलब आई डिसाइडेड दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। और मुझे अभी भी याद है कि हम आई थिंक हम सब ने साथ में नरेशन सुना था, यू मी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस टुगेदर इन द ऑफिस। आई हाँ सेकंड, हाँ मैं जितना रोई, इट वाज एम्बैरेसिंग ऑलमोस्ट, लाइक ये नरेट कर रहे थे एफर्टलेसली, जो ब्यूटीफुल नरेटर, और मैं उधर बैठ के लाइक इनिशियली आई वाज लाइक एम आई द ओनली वन क्राइंग, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो। एंड ये मतलब मैं ज़्यादा ऑब्वियसली बोल नहीं पाऊंगी मेरे कैरेक्टर के बारे में और फिल्म के बारे में, लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो जब लोग देखेंगे, it will make you pause, it will make you think, you will ask all the difficult questions. Like हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ें हमारे रिश्तों में क्या गलत हो रही है, लेकिन कभी हम कुछ करते नहीं हैं. We don't do anything to stop it, we don't do anything to change it, and this is a film that will force you to, you know, introspect. So yeah,
ओके, और हमारे साथ दो बहुत ही यंग स्टार्स हैं, जी सर और Yeah, the नफीसा मैम, youngest. और दो थोड़े हाँ, ठीक ठाक थोड़े से ठीक-ठाक सीनियर से। लोग हैं, सिद्धार्थ और विदात्री। नफीसा मैम ने कमाल की बात कही, वो जो रिश्ता है, प्यार है, आजकल ना बहुत यंग जनरेशन जेनजीज जो हैं इम्पेशेंट भी हैं प्यार को लेकर, जल्दी टूट भी जाता है। आपके थोड़े से एक्सपीरियंस से आप दोनों के, ये जानना चाहूंगा कि ये जो रिश्ता टूटता है प्यार में, जो कम्युनिकेशन का गैप है, ये रिश्ते टूटने की वजह क्या आप मानते हो? और यंग लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मेरे बचपना याद आ रहा है क्योंकि आई यूज टू लव सो मच, और कितने सारे लोगों से मैंने लव किया। तो जब आपके दिल टूटते हैं ना, तो ये मत सोचना कि कोई और आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये एक रियलिटी है। यू डोंट हैव टू बी इन डिप्रेशन एंड डाई ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। यू हैव टू लिव लाइफ, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई आपके नसीब में लिखा है। इट इज द रियलिटी ऑफ, आप नशे में मत डूब जाओ। यू डोंट गेट इनटू एडिक्शन, यू डोंट डिस्ट्रॉय योर हेल्थ, यू डोंट डिस्ट्रॉय योर फैमिली वैल्यूज। जो एक साथ जोड़ के उसको आप सक्सेसफुल व्हाट इज इट, दिशा रोड में आप ला सकते हो। नेवर लूज हार्ट, बिकॉज लव इज इन्फिनिट, और इट इज देयर। You and love for yourself is the most important. भाड़ में जाए जो आपका दिल तोड़ेंगे, भाड़ में जाए। आप हो ना तो सब कुछ है। क्या बात है, आप इसीलिए इतने प्यारे लगते हो, वो अंदर से भी हो आप। नसर सर, आप बताओ। Yeah, I totally accept what she says. This man and woman relationship, it keeps changing, in years. You take reference of our own film. You will see a romantic film of 1960s. You see the romantic film of 2010. There is a vast difference. How women were portrayed in those days, how women are portrayed now. Actually, it has opened up a bigger arena for women, because nice stories are made, women-centric. So, but I can see there is a liberation in this younger generation. Right. There are a lot of, way of living which we never had in our, I'm not complaining. We never had that liberty. Right. Now, breaking up, I see it's no more a heart-paining thing now, younger generation. Those days, I don't know whether you know a film called Urdali Ragam. There is a breakup of it. It ran for 2 years just for the breakup. The guy, the character he lost, it ran for 2 hours. There was a pain. There was a pleasure in having the pain. Now I see these children, they're not so serious. Actually, it is a good thing. They know it is not going to be the reality. Now they cannot progress with this pain. So in a way, accepting is good, but putting a comma and breaking up, becoming a habit is a very big question mark now. Once you break up, okay, break up. It doesn't mean you have to stop. You have to find another one. But in between, you have to be positive, go progress yourself, whatever you like. If you want to be an actor, or if you want to be a director, if you want to be a businessman, go. But just, because this I came across through one of my friend's son. It's like, cracking ice. It's like having a bucket of water in Kashmir, like that. Once the breakup is done, they think, oh, that's all. Huh? So then again, that is very dangerous in the younger generation, I see. Commitment is a very important commitment is a very important thing, I think. सिद्धार्थ, जस्ट नहीं, मैं इससे ही जुड़ के मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारी फिल्म में भी ये थ्रेड है कि सेपरेट होना ये इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप सेपरेट होते हो, वो बहुत अहम है। जो कमिटमेंट की बात है, इफ यू आर कमिटेड टू अ रिलेशन, तो यू हैव टू बी कमिटेड to the growth of that relation and to the growth of the other person.
और ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे ग्रोथ अलग अलग दिशाओं में, तो फिर दोनों को साथ में बैठ के डिसीजन लेना होगा कि हमको अभी क्या करना चाहिए. Are we outgrown this phase of our relationship? What is the next phase? And it's not instant. It's not like real. बहुत टाइम जाता है, बहुत बातें करनी पड़ती है. I think हम थेरेपी की बात कर रहे हैं इस फिल्म में. कपल्स थेरेपी लोगों को करना ही चाहिए. I really feel. और some sort of healing between, क्योंकि तुम्हारे एनर्जीज एक साथ है और फिर कभी कभी वो नहीं है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, तो बातचीत करना बहुत जरूरी है. और उसके बाद अगर आप अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो तो सेंड विथ लव, सेंड ईच अदर विथ लव. मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे वायलेंस, सो मच Exactly. वायलेंस अगेंस्ट योर पार्टनर. जब it's not आपके nice. रिश्ते टूटते हैं Exactly, आजकल, आई मीन इट इज शॉकिंग Yeah. हाउ क्या क्या हो रहा है हमारे देश में और टू यंग पीपल. इट इज और स्कैरी. नफीसा मैम, इसीलिए वो फिल्मों में भी बहुत ज्यादा वायलेंस और वो चीजें दिखाई दे रही हैं. हमारा कोर जो था, रोमांस, लव, म्यूजिक, वो सब कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है और उसको ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एक्शन, इसलिए वायलेंस. बार बार वैसे पिक्चर्स लोग देखते हैं. वायलेंस को कितने देखोगे? क्या No, you cannot blame them that they are not writing a letter, make a film like that. Yeah. Even makers should have the responsibility. What kind of बहुत सारे पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप हो रहा है हमारे देश में अभी पिक्चर में, मगर मीडिया तो आपको पता ये बात बोल भी नहीं सकते, हम लोग भी नहीं बोल सकते, बट नौजवान को समझना चाहिए. there is a mind manipulation, और आपका माइंड अपना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल of the direction your thought goes. Go in the right direction. दैनिक भास्कर ये कमिटमेंट देता है कि आपकी बात सही उसी तरीके से रखेंगे जैसा आपने बोला है. और ये जरूरी भी है कि लोगों तक और खासकर यूथ तक आवाज जाए और सही आवाज जाए. वेदांती, आपसे भी पूछूंगा कि ये जो नए नए टर्म्स आ गए ना, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, होस्टिंग और बहुत सारे नए आपने भी सुना होगा, कमिटमेंट फोबिक हो गए हैं क्या हम लोग? कमिटमेंट What is फोबिक benching, by नहीं, the मुझे way? भी नहीं पता. What is benching? मुझे भी नहीं पता. You keep certain people Oh. as substitutes. Okay. Options. Oh, wow. Sir, It's a You football mean term. Same in time. relationship or Yes, in in relationship. In relationship. एंड No, सिचुएशनशिप come Yes, again. yes. What is it? we are old people, you have to explain. benching and situationship. Benching I just learned from Paddy right now, but situationship मतलब दोनों साथ में है. एक रिलेशनशिप में जो दोनों लोग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं है. मतलब it's not a commitment. It's like they're doing everything that a couple does, You but can they're not still exclusive. shop. You can Okay. still shop, you can still go out, you can still have open relationships. Which is, you know, That's मेरा situationship. ये मानना है, ये सारी चीजें थी पहले भी. पहले भी थी, अभी बाहर आ रही नामकरण हुआ है, बस उतना ही है. और एंड आई थिंक इट इज बेटर. It's तो नाम better. दे दो ना आप. correct. नहीं तो वो गैस लाइटिंग जैसा होता था ना पहले, कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी अभी ओपन यहाँ मैं बेंच कर रहा हूँ तुम्हें. ओके, लेकिन सिद्धार्थ पहले निभाते थे. सर ऐसा मुझे नहीं लगता है. नहीं, मुझे लगता है actually- बहुत निभाते भी है अभी भी है. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमिटमेंट फोबिक है. हम्म. आई थिंक आजकल का, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मेरा प्रायोरिटी ये है कि मैं खुद से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करूं पहले, करेक्ट. टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर बिफोर इवन आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर. दैट इज ऑलवेज बिन माई प्रायोरिटी. Correct. एंड आई थिंक जब हमको पता चलता है कि ओके मैं ऐसी हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, फिर हमको लगता है कि नहीं हमें सेटल नहीं होना. वी डोंट वांट टू सेटल फॉर मीडियोकर स्टफ. वो लोगों को लग रहा है कि कमिटमेंट फोबिया. अगर मुझे कल मैं किसी से मिलूंगी, मुझे लगता है कि ओके हम बहुत अच्छी तरह से वेवलेंथ हमारा सब मैच हो रहा है, आई वुडंट थिंक ट्वाइस बिफोर कमिटिंग टू दैट पर्सन. बट अगर नहीं हो रहा है, मैं नहीं डरूंगी टू लीव द रिलेशनशिप. पहले वो कंडीशनिंग होता था, like I've seen women go through that, oh if we've given a commitment then this has to go on forever. But I don't think so. People think like that now. So a lot of people think it's commitment phobic. I don't think so it's that. I think people are more picky. And वो ऐसे ही होना चाहिए. I और feel, मैं at ये this भी एक point. बात कहना चाहता हूँ. आई हैव सीन दिस अ लॉट इन माय लाइफ. देयर आर कपल्स हु हैव स्पेंट 30 years 35 years and now are separating. Yeah, You know, बट आई ऑल्सो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी एक सीरीज शूट कर रहा हूँ जिसमें सारे एडीज
बहुत young हैं, they're 24, 25. Many of them are engaged to be married already, and that's their choice. So generalize नहीं करना चाहिए. हाँ, Is what my point is. मुझे और ना- एक्चुअली जो नफीसा मैम ने कहा मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जब ब्रेकअप हो भी जाता है आई डोंट थिंक सो देयर हैज टू बी एनी नेगेटिविटी आई फील लाइक यू शुड स्टिल हैव दैट फेथ एंड बिलीफ इन योरसेल्फ दैट आई विल स्टिल बी ओके ओके ये वर्कआउट नहीं हुआ बट फिर भी आगे बढ़ो सो आई फील लाइक most of us have started Yeah. And thinking also, like that. as a elder, I must say this, जो violence दरवाजे के पीछे हो रहा है हमारे देश में in the Domestic garb violence. of Hmm. in the Domestic garb of in the garb of marriage and Yeah. of course which is domestic violence. Yeah. अभी हेल्पलाइंस बहुत सारे हैं सरकार ने बहुत सारी चीज आगे बढ़ाए हैं which the aggrieved or the injured or the hurt partner must speak out. Do not take an aggressor. He does not deserve you. Get out, or she does not deserve you. Get out. Because a leopard doesn't change his spots. वो कहावत है ना कि वो बदलाव कब आएंगे क्योंकि शराब पी के आप धुरंधर बनोगे तो फिर आप किस टाइप का इंसान है निकलो आउट पैडी जब कमिटमेंट की बात हो रही है ऐसे कमिटेड एक्टर्स मिलते हैं स्टार्स मिलते हैं कितना फील करते हैं और फिर प्यार की बात करते हैं इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इतना प्यार मिला है लेकिन कोई ऐसा फीडबैक जो अभी भी जहन में दिल में रह गया हो One of the most special and consistent feedback I have got from different countries is that this is the first Indian film we have seen Yeah. which does not have a hyper masculine character. अल्फा Alpha. It does not have a hyper because all Indian films have a hyper masculine character. At least even the average, even the film that goes to festivals. He said this is the first one of those rare films where all the men are vulnerable and honest, and so that is something that I felt because it's not that I consciously set out to write that. कहानी लिखते लिखते बन गई लेकिन मैंने कॉन्शियसली ऐसा नहीं लिखा था कि हे आई विल इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स दैट आर लाइक दिस ऐसे मैंने सोच के नहीं लिखा था बट दैट्स द फीडबैक दैट आई गॉट एंड दैट फेल्ट वेरी affirming because in a way I feel that men recently 3 months ago a very close friend of mine committed suicide and he was a wonderful guy. He wrote a book. That book was made into a show on Amazon. Okay. And he was wonderful. We all loved him. But he was not, he was unhappy. He never said anything bad about anybody. He said he was unhappy. But how unhappy? हम लोग को पता नहीं था. And there is a problem. Men do not express themselves. Men are afraid to be vulnerable. All of those things are true. So somehow to normalize being vulnerable is also, I think, important. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत important. Because see, we are there is a philosopher and a writer called Eckhart Tolle. Okay, and he has described something called the pain body. Okay, जो each of us has a pain body. Now someone has let's say gone through a terrible breakup, then that person lives a life of a person who has been betrayed. So that's his pain body. लेकिन दुनिया का भी एक pain body होता है. The earth has a pain body. Currently, the pain body is that of majoritarianism, violence, differences, division, suspicion, and there's so much aggression. But we don't realize it. And as human beings, we are all carrying a wound inside, but we are not able to express it. So Eckhart Tolle says that at a time when the global pain body is violent and hurtful, then it's a job of entertainment to do the exact opposite. To tell stories of compassion and kindness and empathy. अब आप And to go away from violence. और जब आप बीमार हो किसी का if you need an organ donation, blood donation, आप कभी किसी से पूछते हैं आपकी I mean, what are you, where are you from? कभी नहीं.
इंसानियत इज व्हाट इज जो 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 लोगों को जो जुड़ते कुछ हैं, और दैट इज व्हाट लाइफ शुड बी, नॉट दिस जर्नी ऑफ क्या डिवाइड एंड रूल, ऐसे Yes. नहीं होना चाहिए. We must support each other because today, tomorrow we need each other. Who will help each other but ourselves? नासा सर, मैंने देखा इसमें जो एक डैड और सन की जो वो बॉन्डिंग है या उनके बीच में जो रिश्ता है अनकहा सा भी, कई सारी चीज़ें जो एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो भी है. मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपके फादर ने आपको बहुत इंस्पायर किया और वो पुश करते थे कि एक्टिंग में जाओ. आप नहीं. शुरू में रिलक्टेंट थे. नहीं. I never wanted to become an actor. हाँ. I never wanted. That's why I see Adil Hasan as my father. I never wanted to be an actor. I come from a very small family. For me, monthly salaries was the big important thing. Those days, and I'm talking about 70s, 250 rupees per month would have solved my problem. And all the problem came when I became a film actor. Of course, whatever I am today, to fulfill his dream, it's not my own. I'm not लेकिन क्या- complaining him. लेकिन क्या कमाल के फादर थे, बहुत ही मॉडर्न, बहुत लिबरल और बहुत मतलब No, it was. He saw something in you. No, I'll. I मतलब don't अदर know. वे राउंड होता है. Usually, I don't know, he हाँ. had, Really like see, Marvel. I'll tell you, when somebody becomes a popular or a star from a lower middle class family, I don't know, in South, we have a lot of problems. They have suspicion that you have bars of gold stacked and you always, have women around you. You bathe in, Scotch whiskey, all these things. So like this, so the problems were multiplying. I went and asked my father, why you made me an actor? He told me, Malum nahi ba. He said, I don't know. So it is his fancy. It was a visionary. वो नहीं होता तो आपके जैसे इतना कमाल का एक्टर नहीं मिलता हमें. If you'd have asked me to, he himself told me this. If you'd have made me to be a scavenger, I would have been a scavenger. But I would have tried to be the best scavenger. Wow. Even acting, if you be a scavenger, I would have become the best. That's what my natural thing. So, I don't know. How's your relation with your son? My son, they know what to do. They advise me what film I should accept, what should I play. So they are more intelligent. That's what I see in this film. हाँ. This is because I saw my sons in him. Wow. The scenes I had with him, so it was very. That's what I told. I could see the characters. What I have seen, the thing. So the relationship what we have should be the very true, needed relationship. I think. Absolutely. ये जो ब्रोमांस है सर आपको देखने को मिलेगा, ये अनमैच्ड ब्रोमांस है. Correct. बहुत कमाल है और ये बहुत मैं बहुत. एनर्जी उसकी फील कर सकता हूँ. ये कमाल के पॉजिटिव लोगों की एनर्जी ना वो फील कर सकते हैं. I can even bet हाँ. if somebody watches the film and says this cannot happen in anybody's life, I'll give back the salary. नफीसा मैम वो जो सॉरी No. Yeah, anybody can get connected with the film because whatever happens in these characters, it would have happened in your life, his life, the cameraman's life, everybody's life. So it is part of their own life. Only we are enacting. And Paddy has written this. मैम वो जो पॉजिटिविटी की हम बात करें ना, वाइब एनर्जी की, फैमिली की भी, आप इतनी इंस्पायर करते हो. आपने इतनी बड़ी जंग लड़ी और हमारे सामने इस तरीके से आप अभी भी लड़ रहे हो. ये फैमिली, परिवार और वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है उस जंग के समय? परिवार, फैमिली तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है थ्रू योर चैनल, बिकॉज आप सीरियस चैनल हो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है. एंड इट कॉस्ट नथिंग टू पुट दैट लिटिल बिट अवे हर महीना आपके परिवार के लिए, फैमिली इंश्योरेंस. बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. क्या पता कब क्या होने वाला है.
यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हेल्थ आज हमारे देश में बहुत महंगा है. इट इज आउट ऑफ रीच. और जहाँ सरकार, आई मस्ट से, जहाँ हेल्थ सपोर्ट देते हैं, उससे ज्यादा चाहिए टू टेक केयर ऑफ somebody who is ill. सिद्धार्थ और विद्यार्थी और आप तीनों से लास्ट में, जो कि हम बात कर रहे हैं पेट्स की भी, फैमिली की भी, हमारे लिए जो मियाज़ाकी है, इस तरह के जो अपने जीवन में जो ये टूटना है, उसके बीच में तन्हाई है, साइलेंस है, ऐसे किसी सपोर्ट सिस्टम का रहना कितना इम्पोर्टेंट है? Codependency. इट इज हाँ नहीं, वो सपोर्ट सिस्टम हम सबको चाहिए. लोग चाहिए हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और जिनके साथ हम बैठकर कुछ भी बातें हम शेयर कर सके, हमारा दुख दर्द बांट सके. लेकिन इट इज़ नॉट ओनली सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ लाइफ, एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. और मेरा ये मानना है कि अगर आप ज़िंदगी को सरेंडर करते हो विथ एन ओपन हार्ट, ज़िंदगी आपकी देखभाल करेगी, और अच्छे लोगों को हमेशा आपके साथ ज़िंदगी में, मेरे लिए तो ये हमेशा से ही है. आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल that I have so many lovely people around me, that we all share such a beautiful bond through this film. But it is life's gift to me that ये सारे लोग आ गए, और मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, and it keeps building, you know. So life is beautiful क्योंकि लोग हैं हमारे इर्द गिर्द. कुछ ऐड करना चाहोगे आप? he said it perfectly. but वो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए तो वो बहुत ही और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हर रोज उठते हैं facing rejection, you know. So I feel like you should give it more that's all the more reason for you to give it more importance in your personal life. It's because you shouldn't feel rejected in your personal life. You should, because you're facing it here every day. अगर दोनों एरियाज में अगर आप वो फेस करते रहते हो, तो I don't think so you can like survive here, and obviously it's unhealthy for your mental health as well. So I truly believe that, and I also really believe that you should be very picky about the energies that you're surrounded with. मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि not to give access to anybody easily. पहले नाइव होती थी बहुत, लेकिन अभी ये फिल्म के वजह से, लाइफ के वजह से बहुत अभी वो समझदार हो गई हूँ मैं तो. Now one thing I realized, I realized something through Mandira ji when she spoke in the beginning. When we grew up, I'm 67 now, the ultimate thing is a friend to open up your mind and tell him whether it's a breakup, whether it's a problem with your brother or this thing. Now I understand you need somebody detached but who cares you beyond a friend. Yes. Yeah. Therapy, when she said about therapy. because Yeah. my wife is also a psychologist. Oh. Yeah. Oh, I didn't know. Yeah, Paddy knows. So now this therapy, when you have a problem, you go to a for a therapist. I think that is very important. Very now. important. Absolutely. That's what she just opened up. Yeah, very true. I take therapy and it has completely changed my life. थैंक यू सो मच. और मुझे वक्त का वहाँ से इशारा बार बार दिख रहा है, लेकिन ये कमाल की जो फिल्म है, एंड कुडोस टू यू पैडी, कि इतने शोर शराबे के बीच में ना इतनी हार्ड फिल्म बनाने के लिए, जिसमें खामोशी जो है ना वो बहुत शोर करती है अंदर तक जाकर. You know, it's actually the easiest thing in the world to sell Coke. Coca-Cola. It's much harder to sell something to people that actually can be good for them. You know, it's so easy to make Coke. You know, just sugar, water, some caffeine. लेकिन उसके लिए फिर ऐसे कमाल के इतने प्यारे लोग आते हैं, हाँ, और and I think जो इस अलग Marketing is तरीके the problem. marketing is the problem. Marketing is the problem. That's true. Yes. थैंक यू सो मच गाइस. इतना फ्री फ्लो और हार्ट फिल्ड कन्वर्सेशन था, वो लग रहा था कि खत्म ना हो, और उम्मीद करते हैं जब फिल्म हम देख रहे हो ना तो वो इमोशन भी खत्म ना हो, बेतहाशा प्यार मिले आप लोग को. थैंक यू बहुत so much. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Thank you.